the same chapter in history, that is Nazism and the rise of Hitler. We were discussing about. Now we will today discuss about the policy of Nazism, which was propagated by the German Chancellor or the German dictator Adolf Hitler. Adolf Führer Hitler. So the Weimar Republic was led by men of exceptional talents who could not succeed in tackling the economic problem of the country. Why the Weimar Republic was not successful? Because that particular organization was not able to tackle the economic problem of the country. Germany was going through an economic crisis at that time, and the government which was formed was responsible for overcoming that economic crisis. But the Weimar Republic, which was a new government which was formed in Germany after the death of Bismarck, was not, and after the end of the First World War, Weimar Republic was formed, and Weimar Republic was not able to fulfill the wishes of the people, and they were not able to overcome from the economic crisis which they had faced after the defeat of the First World War. Okay. A number of political movements gained resistance in Europe in the post-World War first period. There were many types of movements which was going on in different parts of Europe, especially a movement which was going in various parts of Europe was fascism. It was going in mainly, from Italy. It was propagated, policy was propagated by Mussolini, who was a dictator of Italy. Okay? And this same policy was also propagated in many other countries of Europe like Hungary, Poland, Portugal, Germany. Okay? However, the success in Italy and Germany under the names of fascism and Nazism respectively proved the most dangerous for the entire world. The fascism which was propagated in Italy and the Nazism which was propagated in Germany, both these policies were very dangerous for the entire world, proved to be very dangerous in the upcoming years after they were launched. Okay? Now we will talk about the policy of Nazism in Germany. How did it start? Who started it? What was the policy? We will discuss about it. Nazism was the German version of fascism. What is the Nazism? Was the German version of fascism. It was a German version of fascism. Means the policy of fascism was pretty much similar to the Nazism. Both were you can also say that both policies were same, but the simple difference was that Nazism was followed in Germany and fascism was followed in Italy. Both the policies were ideologically same. Okay. The Nazi dictatorship under Adolf Hitler was proved to be the most brutal and the cruel rule of modern times. The rule of Adolf Hitler in past 100 years, there was no other dictator more than Adolf Hitler, who was pretty much cruel and brutal in its various types of things that he did. Okay. That he had did. The term Nazi or Nazism came to be derived from the National Socialist German Workers' Party, for short Nazi Party, political party founded by Hitler. So the policy was propagated by a political party. All the political parties in this world have some of the ideologies. And for example, you may take the examples of various Indian political parties. They have different ideologies. Similarly, the National Socialist German Workers' Party, which was formed by Adolf Hitler in 1921. So the policy which was propagated by Adolf Hitler through its National Socialist German Workers' Party
That policy was known as Nazi. Okay. Why Nazis had a growth in Germany? Why it was easily accepted by the people of Germany? We will take a look on some of the causes. The most significant cause of the success of Nazism was the economic condition of Germany, because Germany had fought the World War largely on loans. Okay, and so Germany, because of its defeat, he had to pay a large amount of war reparations in gold. Okay, and the country was not able to fulfill the wishes of those countries from whom Germany had took the loan. Okay, the economic condition of Germany became so miserable that it refused to pay war reparations. Germany was not able to pay the war reparations because the gold reserves were taken away. Most of the regions where the gold was there, that particular reserve was taken away. That is why the Germany was not able to pay back the war reparations and pay back the loans which it had took from rest of the countries. Okay. As a result, France invaded the leading industrial area. When Germany was not able to pay back the loan taken by France, as a result, France was able to capture the main reserve area of Germany, that was Ruhr, and the value of the German mark fell steep with too much maintenance. Now, for paying back the war reparations, Germany took a serious step and started printing the currency notes in a large quantity. The currency notes which were printed in Germany was known as Mark. Mark was the currency which was used in Germany, and they were printed in large quantities. As a result, large quantities of प्रिंट होने की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई. For example, you may take an example. If a particular industry wants 100 labor, if a particular industry wants 100 labor and it has an option of 1000 laborers, so what will happen? The value of those laborers will fall down. They will get lesser wages. अगर 100 लेबर की ज़रूरत है और 90 अवेलेबल है, तो वो 90 लेबर्स होंगे, उनको अच्छी इनकम, थोड़ी इनकम बढ़ा के भी मिल सकती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और कमी है. सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम होगी, तो उससे क्या हो जाएगा? वैल्यू उसकी गिर जाएगी. तो करेंसी इतनी ज़्यादा छाप दी गई, इतने ज़्यादा अमाउंट में करेंसी छाप दी गई कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, थोड़ी भाव वैल्यू. ट्रक भर के भी जब जर्मन माल के लिए जाया जाता था, बहुत पूरी ट्रक भर के, तो जाके एक पैकेट ऑफ ब्रेड वो लोग खरीद पाते थे. तो इतनी जर्मन करेंसी गिर गई थी. ठीक है. इन अप्रैल 1923 the US dollar was equal to 24,000 marks. 24,000 मार्क्स, जो 24,000 रुपए थे जर्मनी के, वो बराबर थे $1 के. कितनी करेंसी गिर गई? हमारे यहाँ क्या है? 70 रुपीज़ जो है वो $1 के बराबर है. तो हमारी तब भी करेंसी की वैल्यू काफ़ी ठीक है, लेकिन वहाँ की करेंसी की वैल्यू देखिए 24, और धीमे धीमे तो और वैल्यूज गिरती है. रिजल्ट क्या हुआ कि 9,86 लाख मार्क्स वॉज इक्वल टू $1. सोच रहे आप, इमेजिन कीजिए कितना सीरियस सिचुएशन. इमेजिन कीजिए आप 9,86,00,000 जो आपका मार्क है, जो जर्मनी करेंसी है, वो $1 के बराबर थी उस टाइम. यानी पूरा ट्रक अगर आप भर के जर्मनी के नोट लेके जाएंगे, तब जाके आपको एक पैकेट ब्रेड मिलेगा. इतनी करेंसी जर्मनी की गिर चुकी है, इसकी वैल्यू इतनी गिर चुकी थी. क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा पेपर करेंसी उन्होंने सर्कुलेट कर दी थी पूरे जर्मनी में कि उसकी वैल्यू ना के बराबर रह गई. इसका रिजल्ट क्या हुआ? The crisis was known as hyperinflation. इससे क्या हुआ? जर्मनी में क्या आ गया? बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई. अब करेंसी इतनी ज़्यादा है तो छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी बड़ी महंगी मिल रही है.
ठीक, तो इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत चरम सीमा पर महंगाई। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, टॉप मोस्ट। हाइपर बोला आप लोगों ने मैथ्स में सुना होगा, हाइपर बोला, हो सकता है आप लोगों ने बिना सुना हो, फर्स्ट ईयर में सुनोगे हाइपर बोला, ठीक है। पैराबोला, हाइपर बोला, बहुत सारे कर्व्स जो होते हैं आप, ठीक है, तो उसी में एक हाइपर बोला मतलब सबसे उच्च कोटि का, जो सबसे ज्यादा तेज बोलता है वो हाइपर बोला होगा, ठीक है। हाइपर बोला, जिसने सबसे ज्यादा तेज बोला वो हाइपर बोला, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा चरम सीमा में जब महंगाई पहुंच जाती है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप जब देख ही रहे हैं 9,86,00,000 जर्मनी के पैसे रुपए जो थे वो $1 के बराबर, इतनी ज्यादा जर्मनी करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। तो इससे क्या हुआ? द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 हिट द जर्मनी इकोनॉमी बैटल। ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन सिर्फ जर्मनी में आया, और भी कंट्रीज में आया, लेकिन जर्मनी कुछ ज्यादा हिट किया उसने, क्योंकि जर्मनी उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 10 साल बीत चुके थे, लेकिन जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर नहीं किया। बाकी कंट्रीज ने काफी हद तक रिकवर कर लिया था, इस वजह से उनको ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन का उतना ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा, लेकिन जर्मनी 10 साल तक सिर्फ वॉर डिप्रेशन ही पे करता चला गया, और इस बीच उसने जो भी करेंसी छापी उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा गिर गई। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हिट हुई। और सबसे ज्यादा क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट, 80 लाख जॉब्स जो थी वो चली गई लोगों की, 80 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स लूज कर दी। फॉरेनर्स स्टार्टेड विथड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द जर्मन बैंक्स, फॉरेनर्स ने जर्मन बैंक से मनी विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। डम स्टार नेशनल बैंक, द लीडिंग बैंक ऑफ जर्मनी, वेंट बैंकरप्ट। जो जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है डम स्टार बैंक, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो गया, उसके पास कोई पैसा नहीं था, ठीक है। प्रोडक्शन डिक्लाइन टू 40% एंड फॉरेन ट्रेड हेडेड टुवर्ड्स द डिक्लाइन। प्रोडक्शन तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिर गया, 40% प्रोडक्शन गिर गया, ठीक है, एंड फॉरेन ट्रेड भी पूरी तरीके से खराब हो चुका। हिटलर ब्लेम्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द plight of the German masses. He won over the lower middle classes by instigating their anti-capitalist sentiments through the tall promises. अब what happened? Hitler started promising the German masses that he would bring a good future for them. The main responsibility of this situation lies to the Socialist Party or the Democratic Party which was there, the Weimar Republic was given all the responsibility for the economic situation of the Germany. So by एक तरीका होता है, you can say that if you disrespect other, you can gain the respect sometimes. If the people has two options और आप किसी उन two options में से एक को अगर आप बदनाम कर दें तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो है इज्जत पा जाता है। तो उनके पास, जर्मनी मासेस के पास क्या था? उनके पास टू ऑप्शंस थे, आइदर हिटलर और आइदर वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक को हिटलर ने इतना ज्यादा बदनाम कर दिया, उसकी इतनी ज्यादा बुराइयां निकाल दी लोगों के सामने कि वीमर रिपब्लिक को लोगों ने बुरा समझा, और उनके पास दूसरी चॉइस थी हिटलर। फिर हिटलर को उन्होंने अपना मसीहा या सेवियर मानना स्टार्ट कर दिया, ठीक। और बिकॉज हिटलर बिलोंग टू द आर्मी एज वेल, तो आर्मी के ऊपर बहुत फेथ था लोगों को, ठीक। The humiliating conditions of the Treaty of Versailles were extremely harsh, unjust and humiliating. सबसे बड़ी बात है कि humiliating, Treaty of Versailles was humiliating because Germany lost the war. All the prestige which was gained by Germany in the previous years was lost. Most of the territories of the Germany were lost. So Germany has, you can say that Germany had लॉस एंड लॉस एवरीवेयर, ठीक है, हर तरफ से सिर्फ हानि हुई जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बहुत ही ह्यूमिलेटिंग। जर्मनी हैड टू पे हेवी प्राइस फॉर द डिफीट। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने बहुत सारी कॉलोनीज कैप्चर कर रखी थी, वो कैप्चर्ड कॉलोनीज तो गई ही गई, और जर्मनी की जो खुद की कॉलोनीज थी और जर्मनी की जो खुद की कंट्री की जो एरियाज थे वो भी लूज हो गए, ठीक है। Germany lost 1/10% of its population. For example, if the population of the Germany was 10 lakh, then it had lost 1 lakh people. Okay,
13% of its territories were lost. The main German territories were there, and 13% of its territories were lost. 75% of its iron ore areas were lost. The areas of Germany which had iron ore, those areas were lost by the Allied powers. And 26% of its coal deposits were also lost. Coal deposits were lost. तो मेन जो रिसोर्सफुल एरियाज थे वो तो जर्मनी ने लूज कर दी, तो वो वॉर रेपरेशंस पे कहाँ से थे? उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जर्मन मार्क बहुत ज़्यादा प्रिंट करने लगा, एज अ रिजल्ट उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा गिरती चली गई। ठीक है। The Weimar Republic could neither establish an efficient administration nor could assist the people during the crisis of the economic depression. तो वीमर रिपब्लिक क्यों अनपॉपुलर हो गया? वीमर रिपब्लिक ने कोई इकोनॉमिक हेल्प नहीं की लोगों की, वीमर रिपब्लिक कोई स्टेबल गवर्नमेंट देने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे लोगों के लिए कुछ अच्छा उसने नहीं किया, एज अ रिजल्ट क्या वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया। ठीक। द डायनामिक प्रोग्राम ऑफ नाजी पार्टी टू द मासेस वर्ल्ड, और नाजी पार्टी जो थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी, उसने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखे, उनको बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाया। इससे ये इट वॉज वन ऑफ द प्राइम रीजंस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जर्मनी वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेकंड ऑप्शन, दैट वाज द नाजी पार्टी। हिटलर्स आइडियोलॉजी वाज एंटायरली एग्रीमेंट विद द विजन एंड ट्रेडिशन ऑफ द जर्मन्स। जर्मन्स के जो माइंड थे उसको हिटलर ने रीड कर लिया और उनके माइंड के अनुसार ही वो प्रॉमिसेस करता था, इसलिए जर्मन मासेस बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हुए थे। नाजिज्म वाज अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कम्युनिज्म। नाजिज्म कम्युनिज्म को अपोज करता था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी जिसमें सेल्फ प्रॉफिट की आइडियोलॉजी होती है, मतलब वन पार्टी रूल, वन मैन रूल, इस तरह की जो पॉलिसी होती है वो कम्युनिज्म पॉलिसी। तो अगर इस तरह की पॉलिसी अगर हिटलर अपनाता तो शायद लोग उसको एक्सेप्ट ना करते, लेकिन उसने दूसरी पॉलिसी अपनाई। उसने कहा कि वो लोगों के लिए काम करेगा, he will work for the people। तो बिल्कुल कम्युनिज्म के अपोजिट पॉलिसी उसने, इसलिए जर्मन मासेस उसकी तरफ और अट्रैक्ट हुए, हालांकि उसके गोल कुछ और थे। हिटलर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस ऑफ नाजी। और हिटलर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ओरेटर था, स्पीच बहुत अच्छी देता था लोगों में, बातें घुमा कर कैसे बात करना, कैसे लोगों के माइंड के साथ खेलना है, हिटलर को बहुत अच्छे से आता था। ठीक है। ये सब क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, और क्वालिटीज थी हिटलर में, लेकिन वो क्वालिटीज उसने रॉन्ग डायरेक्शन में यूज किया। ठीक है। दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ क्वालिटी ऑफ एंगर, अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो उस गुस्से को अगर आप सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो वो गुस्सा आपको गुड रिजल्ट देगा, और वही एंगर अगर आप गलत दिशा में यूज करते हैं तो आप डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे और समाज में तबाही का कारण बनेंगे। ठीक है। तो वही हिटलर ने क्या किया? मिसडायरेक्टेड एंगर था उसका। ठीक है। उसके अंदर गुस्सा था लोगों के प्रति, जूस के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था, यहूदियों के प्रति बहुत गुस्सा था, तो वो गुस्सा उसने गलत तरीके से यूज किया और यहूदियों को मारना स्टार्ट कर दिया, और पूरी तरीके से वो एक जल्लाद की तरह बन गया और ब्रूटल हो गया, बहुत ज़्यादा क्रूएल हो गया। इसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो गया और आज के समय वो बहुत बुरा आदमी इतिहास में दर्ज हो गया। ठीक है। ये चीज़ें अगर उसे करनी भी थी तो वो दूसरे तरीके अपना सकता था। अगर वो ऐसे अगर जूस को उसे सजा भी देनी थी तो इकोनॉमिक पाबंदियाँ लगा सकता था, सारी चीज़ें उनके लिए बंद कर सकता था, लेकिन उनको मारना, वो इतनी बुरी तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में इतने सारे टॉर्चर सेल्स उसमें बना रखे थे, मतलब ब्रूटैलिटी की हद थी। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं तो फिर आपको भी मरना है। ही वॉज ऑल्सो ह्यूमन एंड ही डाइड, और लेटर ऑन ही वॉज वेरी अनपॉपुलर। और उसने प्रोमिसेस ये किए कि वो यूथ को बहुत अच्छा फ्यूचर देगा, क्योंकि यूथ को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में भी आप देख रहे हैं कि इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूथ, सो मैनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वांट टू अट्रैक्ट यूथ। ओके। नाजीज ऑर्गेनाइज मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। रैलीज ग्रुप करिए, पब्लिक मीटिंग्स ग्रुप करिए, कनेक्ट कीजिए लोगों से, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक हम मासेस का दिल नहीं जीतेंगे तब तक हम उसके लीडर नहीं बन सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रैलीज करें, लोगों के बीच में जाए, पब्लिक मीटिंग्स करें, उनकी दिक्कतों को सुने, ठीक, अपनी विचार प्रकट करें। अनदर सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ हिटलर वाज द वीकनेस ऑफ हिज ओपोनेंट्स। एक बहुत अच्छा तरीका, या तो आप अपने ओपोनेंट से
आपकी क्वालिटीज बहुत ज़्यादा हो या अपने ओपोनेंट से ज़्यादा अच्छे प्रोमिसेस अगर मास्टर से कर पाते हैं, मास्टर्स को अपीज कर लेते हैं, तो आपको वोट दे देंगे। लेकिन एक और दूसरा तरीका, आप अपने ओपोनेंट्स को वीक कर देंगे, ठीक, ओपोनेंट्स को इतना कमजोर बना दीजिए कि वो आपके सामने स्टैंड ही ना कर। जब आप वो ओपोनेंट्स आपके सामने स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ही जीतोगे। इफ यू विल डू अ रेस अलोन देन यू विल विन, सिंपल एज दैट। अगर आप अकेले दौड़ोगे रेस में तो जीतना ही आपको। तो हिटलर ने यही कोशिश की कि उसके सारे ओपोनेंट्स को रिमूव कर दें। तो क्या जो दूसरे ओपोनेंट्स दूसरी पार्टी जो रैली करती थी तो उसमें अपने लोगों को छोड़ देता था, वहाँ पे अव्यवस्था फैला देता था, शोर मचा देता था, कुछ ऐसे कार्य कर देता था कि उनकी रैलीज खराब हो जाती थी। इससे रिजल्ट क्या होता था, सब नाजी की रैलीज में आते थे और हिटलर को उन्होंने एक अलोन वॉरियर की तरह देखा और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ भी हिटलर ने की, ऐसे ही नहीं वो बन पाया। हिटलर फॉर्म आर्म वॉलंटियर कॉर्प्स हुआ नोन एज, देखिए वही हमने बात करने लगा, stormtroopers and brown shirts. The members of the corps guarded the Nazi meetings and created disturbances in the meetings organized by other parties. तो क्या था ये जो इन्होंने दल बना रखा था, इसका नाम था stormtroopers. stormtroopers एक इनके स्काउट गाइड की तरह कुछ लोग होते थे, बड़े स्पेशल कमांडो होते थे नाजी के। तो ये स्पेशल कमांडो क्या करते थे, पहले तो नाजी मीटिंग्स की पूरी तरीके से गार्डनेस करते थे, पूरी तरह से खड़े रहते थे, उसको गार्ड करते थे। और इनमें से कुछ लोग क्या करते थे, दूसरी मीटिंग्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, ठीक है, ताकि अपोनेंट्स को वीक किया जा सके, अपोनेंट्स अपनी बात ना रख पाए। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ